हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द तांत्रिक सर फिजिक्स क्लासेस। आज मैंने स्टार्ट किया है नीट सीरीज विद स्टूडेंट्स। फ्रॉम टुडे आई विल टीच द होल सिलेबस on the YouTube for NEET students. The first lecture in one shot is one-dimensional motion. So I am starting one-dimensional motion, and finally I will do this series over a period of time, and finally I will finish the syllabus for NEET students. You follow these lectures and try to subscribe to the channel Tantric Physics classes. So when we go for these one-dimensional motion, so how many topics are there in one-dimensional motion? Number one, in one-dimensional motion, we have definition. What is one-dimensional motion? Second, which equations are important for one-dimensional motion? Equations of motion needed to do one-dimensional motion. Number third, examples. Number four, after examples, I will give you a few examples. Finally, I will also do one-dimensional motion in projectile motion. Under gravity, not projectile motion, under gravity. One-dimensional motion under gravity. ये कुछ चीजें हैं, चार टॉपिक्स है इसमें, four things, and that will end the one-dimensional motion. And I will try to finish it off in one lecture. Let us start. Definition of one-dimensional motion. When a particle or a body moves in a straight line, back and forth, of course, with variable velocity, of course, but acceleration must be constant. In one-dimensional motion, even acceleration may change. Particle has to move. The only definition for one-dimensional motion is that a particle must be moving in a straight line. Straight line motion of a particle is one-dimensional motion. This is first thing. Straight line motion of a particle is one-dimensional motion. In one-dimensional motion, you see, you need only one coordinate to describe the particle. Maybe it is x, maybe it is y, maybe it is z, but generally it is x coordinate. If it is y coordinate, that is the motion under gravity. So we need only one coordinate to represent one-dimensional motion. Only one coordinate is needed. Coordinate is needed to describe one-dimensional motion. First of all, the particle must be moving in straight line. Maybe it moves back and forth. That is one-dimensional motion. The second point is that, you see, only one coordinate is needed. Maybe it is x, maybe it is y, maybe it is z. If particle has two coordinates, then it's two-dimensional motion, right? So these 2 points describe one-dimensional motion. So definition of one-dimensional motion is when a particle or a body moves in a straight line. लेकिन ये क्या, velocity may be constant, may not be constant. Acceleration may be constant, may not be constant. But there are certain conditions we have to meet for velocity, for acceleration, to make the motion one-dimensional. मतलब कंडीशन ये है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो है, अगर उनके दरमियान कोई एंगल है, अगर थीटा कुछ है, 90 है, कुछ और है, तो वो वन डायमेंशनल मोशन नहीं रहेगा. तो कंडीशंस वी हैव टू मीट सम कंडीशंस, वो आपको मैं बताऊंगा.
So okay, now for one dimensional motion, second point is that to keep the motion one dimensional, acceleration and velocity have to be in the same direction. Same direction, or acceleration, velocity may be in the opposite direction. These two are the conditions for one dimension. अगर velocity और acceleration में कोई एंगल हो, कोई एंगल अगर इनके दरमियान है, तो समझो वो वन डायमेंशनल नहीं रहेगा. दूसरी बात यह है कि यहां एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के दरमियान थीटा 0 है, तो अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के दरमियान थीटा 0 है, यानी कि दे आर इन द सेम डायरेक्शन, स्पीड इंक्रीज होगा. यह भी याद रखने वाली बात है, इसको भी याद रखो आप. जब एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन द सेम डायरेक्शन, स्पीड इंक्रीज हो जाएगा. दैट इज व्हाट यू कॉल एज एक्सेलरेशन, स्पीडिंग अप ऑफ द पार्टिकल. अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी और इन अपोजिट डायरेक्शंस, then speed decreases. यहां आप ये भी कह सकते हैं कि थीटा इज 180 और पाई between acceleration and velocity. ये आपको देखना होगा कि when the speed increases, when acceleration and velocity are in the same direction, when speed decreases, when velocity and acceleration are in the opposite direction. ऐसा कि अगर कोई साइकिलिस्ट ही समझो, वो आगे की ओर मूव कर रहा है, आपने पीछे से पुश किया तो ही विल मूव फास्टर. अगर आपने पीछे से ड्रैग किया तो ही विल स्लो डाउन. तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अगर एक ही डायरेक्शन में है तो समझो वो स्पीड अप हो जाएगा. अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो स्पीड द ऑब्जेक्ट विल स्लो डाउन. अच्छा, तो ये दूसरी बात है, ये भी वन डायमेंशनल मोशन में ये भी याद रखना है. लेकिन कुछ जो मिसकंसेप्शन ये है कि आप कहेंगे अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, देन यू से समटाइम्स वेलोसिटी डिक्रीजेस. वो गलत बात है. वो एक्सेलरेशन नेगेटिव पॉजिटिव पर डिपेंड नहीं करता है, वो इस पर डिपेंड करता है अगर वो सेम डायरेक्शन में है. ये तो दोनों पॉजिटिव है, अगर आपने ये डायरेक्शन पॉजिटिव लिया तो ये भी पॉजिटिव, तो स्पीड इंक्रीजेस. कहीं जाकर के अगर एक्सेलरेशन भी यूं है और वेलोसिटी भी ऐसे ही इसी डायरेक्शन में है, दोनों नेगेटिव है, दोनों एक्सेलरेशन वेलोसिटी नेगेटिव है, और इस सूरत में भी स्पीड इंक्रीज. तो वो कॉन्सेप्ट गलत है. द मोमेंट यू फील दैट एक्सेलरेशन नेगेटिव, द स्पीड डिक्रीज, दैट इज रॉन्ग. द करेक्ट कॉन्सेप्ट इज व्हेन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन द सेम डायरेक्शन, द स्पीड इंक्रीजेस. व्हेन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, स्पीड डिक्रीज. दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. तो ये सेकंड पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से आप देख लो. अच्छा, तो यह है दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट. चलिए, सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट. Now, what are the equations that we need to describe one-dimensional motion? पहली बात यह है कि पहला इक्वेशन मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए we use S equal to ut plus 1/2 at square. This is initial velocity, this is acceleration, but you don't need to put vectors over them because it is a one-dimensional motion. One-dimensional motion में आपको वेक्टर रखने की जरूरत नहीं है, because initial velocity, acceleration and displacement are the same direction. Number one. Number second, you can use a formula. This is the formula used for displacement. And velocity at any time is equal to initial velocity plus acceleration into time.
ये दूसरा इक्वेशन आप लगा सकते हैं, एंड यू डोंट नीड टू पुट वेक्टर्स और दीज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बिकॉज दे आर द सेम डायरेक्शन. Final velocity after some time, initial velocity and acceleration are in the same direction, and therefore you don't need to put vectors because one dimensional motion is a scalar motion. Okay, now one more formula, v is equal to v square minus u square is equal to acceleration into displacement. ये भी आप यूज कर सकते हैं. Distance covered in the nth second, that is initial velocity plus a by 2 into 2n minus 1, while n is this, n is the only second, but it is the nth second. Nth second. Only 1 second, but the nth second. Distance covered in the 5th second. Here you have to substitute 5. Okay. These are the 4 equations that you can use. But here, I must tell you, these are the equations used in one-dimensional motion. But these equations are valid for constant velocity, constant acceleration. Valid for constant acceleration. These are the equations, set of 4 equations. They are valid only for if acceleration is not constant. That means none of these equations can be used. Then you have to use calculus. When the acceleration varies, and acceleration is a function of time or acceleration is a function of position, then what you do? You use calculus. You have to use differentiation and integration techniques. So मैं यहाँ लिखूंगा. These are the equations used for constant acceleration. But if the acceleration is not constant, what you are going to do? What you are going to do? Fourth point. Fourth point. If acceleration is not constant, then we need to use calculus. We need to use calculus. If acceleration is not constant, then we do. But just say acceleration is equal to 2t. Yeah, acceleration is a function of time. So don't expect that to use v is equal to u plus at or s is equal to ut plus 1 by at square or v square minus u square is equal to 2as or sn is equal to u plus a by 2 into 2n minus 1. No, you can't use those equations. This is the acceleration as a function of time. Means acceleration varies with time. Acceleration may even be function of position. This is the acceleration which varies with position. Here also you cannot use those well-known familiar equations which you are used to. So be careful about that. So यहाँ पर मैंने categorically आपको एक explain किया ये कि अगर आपके पास acceleration है और वो time dependent है या position dependent है and is not a constant, then don't use the equations that you already know, those set of 4 equations. Be careful about that. हाँ, अगर क्वेश्चन ऐसा है तो किया जा सकता है, कैलकुलस यूज करके 2-3 लाइन में क्वेश्चन हो जाता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ. अच्छा, fifth point. Fifth point. Now we know the rules. We know the rules how to do one-dimensional motion. One-dimensional motion is what you see, a particle moving in a straight line. So when a particle moves in a straight line, you see, and what are the possible questions that can be asked in one-dimensional motion? In one-dimensional motion, the possible question is that you see, initial velocity is given, what is the final velocity after that time? Acceleration is given, what's the distance covered, what is the final velocity? In how much time it will stop? In how much time it will come back to the same point? These are the questions that can possibly be asked in one-dimensional motion. So let me frame a question. You see, I will frame a question in which these concepts will be clear. So, for example, fifth point, suppose for a particle, initial velocity is equal to 5 meters per second. 5 meters per second. Let it be more. Why not make it 20 meters per second? Let me say acceleration is minus 2 meter per second square. Right? A particle has initial velocity this and acceleration this.
First question which I can make, this is very simple question. Initially I frame these simple questions which are already in my mind, but we can make any question we like depending upon when we improve upon our concepts. We can frame difficult and more difficult questions with time. First question: what is the velocity after 10 seconds? What is the velocity after 10 seconds? B, distance covered, displacement covered in 10 seconds. C, time at which the velocity is 0. Time at which velocity is 0. D, when it will come back to the same position. Why this started? When it will come back to same position. Where it started. It started it small. Why it same position from where, when it will come back to the same position काफी है, ठीक है, same position काफी है, यही लिखना, when it will come back to the same position. And what will be its velocity at that position once it comes back? And velocity at that position once it comes back to the same position. Something like this. Have a look. अगर ये पार्टिकल है, x का तो 0 है, ये x एक्सिस है, पार्टिकल यहाँ है और it is already moving, its initial velocity is not 0, it's already moving with 20 meters per second. Positive velocity है, acceleration is negative, that is a is equal to -2 meter per second. तो क्वेश्चन ये है कि पहला क्वेश्चन ये है कि इसका वेलोसिटी 10 सेकंड के बाद क्या होगा, इसका वेलोसिटी 10 सेकंड के बाद क्या होगा वो निकालना है. फिर डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है 10 सेकंड्स, फिर टाइम निकालना है एट विच इट स्टॉप्स, फिर ये भी कहना है कि व्हेन इट विल कम बैक टू द सेम पोजीशन. अगेन ये मैंने ऐसे आर्बिट्री क्वेश्चन बनाया, और कभी कभी आर्बिट्री क्वेश्चन जब इंसान बनाता है उसका आंसर कुछ उल्टा पुल्टा निकलता है, या दैट डज नॉट मेक ए गुड क्वेश्चन, बट वी हैव गुड चांस टू लर्न थिंग्स. इससे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है. जैसे velocity after 10 seconds, I will write a formula v equal to u plus at. पहले फॉर्मूला लिखना चाहिए ठीक तरह से, पहले फॉर्मूला लिखना चाहिए. The formula that you need to find the answer, you should write down that formula. तो ये v है equal to what is initial velocity, that's 20, plus what is acceleration, that's minus 2. What is time, that's 10 seconds. ये तो हो गया 0, it has stopped in 10 seconds. What's the distance or displacement it covers in 10 seconds? Let us see. हम देखेंगे कितना डिस्टेंस कवर करेगा 10 सेकंड्स में. चलो ठीक है. S is equal to ut plus 1/2 a t square. S is equal to, it is initial velocity 20, time is 10, plus 1/2, acceleration is -2, t square 10 square, ऐसे कुछ. Finish off. So S is equal to 200 minus 100, it is 100 meters. हो गया आंसर. मतलब ये पार्टिकल जो यहां स्टार्ट किया, इन 10 सेकेंड्स इट मूव्स 100 meters. It moves 100 meters. Okay. So when the particle stops, ये तो खुद ही हो गया, it will stop in 10 seconds. It will stop in 10 seconds. तो यहां पार्टिकल स्टॉप हो गया, यहां पर वेलोसिटी 0 हो गया. तो अब एक्सेलरेशन तो पीछे की ओर है ये. तो अब बताए मुझे
in how much time it will come back to the same position? X is equal to 0. So symmetry says that it will come back to the same position in the same 10 seconds. Because in 10 seconds, its velocity decreases from 20 meter per second to 0. In the same 10 seconds, in the opposite direction, its velocity will increase from 0 to 20 meters per second. So it will cover the same distance in the same time. तो अगर आप ये निकालेंगे, okay, let me find its displacement in 20 seconds. So my answer should be 0. बिकॉज 10 सेकंड्स को आगे की ओर लगे और 10 सेकंड पीछे की ओर लगे और यहां पर इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 होगा. वो कैसे? चलो लेट मी, वैसे इसको डायरेक्टली आप कर सकते हो. 10 सेकंड में आगे गया और स्टॉप हो गया, इसी 10 सेकंड में पीछे आकर के इस पोजीशन पर आएगा और जो इस पोजीशन पर इसको आगे वाला वेलोसिटी था दैट वाज 10 मीटर पर सेकंड, तो जब वापस आएगा इट विल हैव द सेम 10 मीटर पर सेकंड इन द बैक डायरेक्शन. लेट अस वर्क आउट दैट. ओके, वैसे तो ये देखकर ही हमें पता चलता है. और अगर इक्वेशंस है आल्सो टू गिव मी द सेम आंसर. अगर मैं इक्वेशन भी यूज करूंगा उन इक्वेशन से भी मुझे वही आंसर मिलना चाहिए. लेट मी सी, हैव अ लुक. चलो मैं निकालूंगा. ओके, डिस्प्लेसमेंट ut plus 1/2 at square is the displacement formula, not distance formula. It is displacement formula. So s is equal to, okay, what is u? 20. What is t? यहां से यहां 10. 20 सेकंड में मुझे ये साबित करना है 20 सेकंड में ये x 0 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा. दैट इज ऑलरेडी इन माई माइंड. तो ये जो t है 20 कर दो प्लस 1/2. व्हाट इज a? a इज -2 और t क्या है? 20. उसका स्क्वायर. ये हुआ 400. खत्म. ये कट हो जाएगा ऊपर और नीचे, माइनस अगेन 400. तो ये तो हो गया 0. इसका मतलब ये 10 सेकंड में वापस यहां पर पहुंच जाएगा. आगे जाकर के इसको 10 सेकंड लगे, वापस आने पर भी ही 10 सेकंड, और 20 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया. लेकिन अगर आप देखो गौर से, डिस्टेंस तो ऐड हो जाएगा. डिस्टेंस विल बी 100 + 100. सो दिस इज नॉट द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस, इट इज फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, दैट मींस इट इज नॉट अलाउड टू कम बैक, इट इज ओनली गोइंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. सो उस सूरत में डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इज द सेम. मगर इफ इट कम्स बैक बिकॉज ऑफ द नेगेटिव एक्सेलरेशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल नॉट बी द सेम. ये आपको क्लियर करना है. यहां पर डिस्टेंस जो है वो ऐड हो जाएगा, एंड डिस्टेंस इज व्हाट यू कॉल एज, यू सी, सम ऑफ द टू, दैट इज 100 + 100, दैट इज 200, बट डिस्प्लेसमेंट इज 0. ओके, नाउ ये तो हो गया खत्म क्वेश्चन. हमें डिस्प्लेसमेंट भी मिला, डिस्टेंस भी मिला, टाइम इन विच इट स्टॉप्स वो भी मिला, वेलोसिटी आफ्टर दैट टाइम. हाँ, एक और चीज है, अगर मैं यहां वेलोसिटी निकालूंगा 20 सेकंड के बाद, तो मुझे लगता है मुझे यहां वेलोसिटी पीछे की ओर 20 मीटर पर सेकंड मिलना चाहिए. दिस व्हाट आई फील, क्योंकि स्टार्टिंग में इसका आगे वाला वेलोसिटी था 20 मीटर पर सेकंड. जब ये वापस आएगा तो यही वेलोसिटी इसको बैकवर्ड में मिल जाएगा बिकॉज ऑफ सिमेट्री. पॉसिबली व्हेन यू इंप्रूव योर वन डायमेंशनल मोशन, आप भी ये कहोगे सर अगर पीछे आ गया, यहां पर जो उसका आगे वाला वेलोसिटी था वही पीछे की ओर उसको वेलोसिटी मिलेगी. बट लेट्स वर्क इट आउट. देखते हैं. लेट मी सी. चलो, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस a एंड t. ये फाइनल वेलोसिटी का जो ये फॉर्मूला है. तो v इक्वल टू व्हाट इज u? 20, ये वाला, प्लस व्हाट इज a? -2. व्हाट इज t? यहां से यहां वापसी पर इधर तक t, दैट इज 20. That is v equal to 20 minus 40. Now see how -20 meter per second. कैसे ही velocity आ गया, लेकिन in the opposite direction. So this is how it works. So it is all about one-dimensional motion. If acceleration is time variant or position variant,
but again you see that acceleration is in the direction of velocity or opposite direction of velocity. Still the motion will be one dimensional. That will not be affected because acceleration may be position dependent or time dependent, but still the motion will be one dimensional if acceleration and velocity are in the same direction or in the opposite direction. हाँ, अगर उनके दरमियान कुछ एंगल है लेस देन 180 या मोर देन 0, तब जाकर ये वन डायमेंशनल नहीं रहता है. अच्छा, ओके. नाउ लेट मी गो टू वन मोर कॉन्सेप्ट. Fifth, it is now sixth point. Sixth point. One dimensional motion under gravity. ये हम डिस्कस करेंगे. One dimensional motion under gravity. तो वन डायमेंशनल मोशन अंडर ग्रेविटी क्या मतलब है? या तो पार्टिकल ऊपर की ओर जा रहा है इन द वाई डायरेक्शन या उसी वाई डायरेक्शन के थ्रू वापस आ रहा है. ऐसा नहीं कि यू आर थ्रोइंग इट एट सम एंगल एंड इट बिकम्स अ प्रोजेक्टाइल मोशन. दिस इज टू डायमेंशनल. So in one dimensional gravity, a particle has to go up straight or it should come straight down, vertically upwards or vertically downwards. तो पहली बात यह है कि acceleration due to gravity is vertically downwards g. वो generally we take it 10 meters per second square. अगर हम ये y का डायरेक्शन लेंगे, इसका मतलब a y जो है, a y acceleration in y direction, that is minus g, that is minus 10 meter per second square. पहली बात तो ये तो दिया है. Because if we take gravity, but gravity is supposed to be constant over some height. Actually gravity जो acceleration का gravity की वजह से जो है वो change होता है to go very high into the space. But if you are in the vicinity of the earth, closer to the earth, then acceleration due to gravity remains constant. Right? Okay? चलो, ये ठीक है. अब क्या है, एक पार्टिकल को मैंने यू प्रोजेक्ट किया ऊपर की ओर, ओके, विद वेलोसिटी यू. अब जाकर के इट गोज अप एंड अप एंड अप एंड अप एंड अप एंड अप इन द वाई डायरेक्शन. तो व्हाट आर द पॉसिबल क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन दिस सिनेरियो? इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? यू आर थ्रोइंग एन ऑब्जेक्ट अपवर्ड्स. व्हाट आर द पॉसिबल क्वेश्चंस that can be asked? Okay, I will make the question. Number 1, A, velocity after time t, after t. ये एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है ग्रेविटी में. B, when will it stop? When v will be 0, मतलब when the object stops. Time निकालना है in which it stops, the object stops. C, okay, let me make as many questions as possible. H कितना ऊपर जाएगा? D, कोई और भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है. वेलोसिटी कब ये 0 बनेगा, यानी कि टाइम ऑफ राइज निकालेंगे. ये भी हाइट निकालेंगे, कितना ऊपर गया. और क्या क्या क्वेश्चन किया? बस ये तीन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. और लगे हाथ टाइम ऑफ फॉल भी, वो भी निकालेंगे. चलिए, पहली बात ये है, तो which equations you are going to use? आपके पास कौन सा इक्वेशन है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, which this is supposed to be constant acceleration, right? तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में कौन सा इक्वेशंस है? वही इक्वेशंस है जो मैंने 4 इक्वेशंस आपको पहले दिए. All those 4 equations are used in one dimensional motion when acceleration is constant. अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तब जाकर कैलकुलस यूज किया जा सकता है वन डायमेंशनल मोशन के लिए. लेकिन फिलहाल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सो व्हाट आई विल डू, v is equal to u plus at. पहले तो यही बेस फॉर्मूला ही लिखना चाहिए. तो v आफ्टर सम टाइम, u तो हो गया, u पॉजिटिव लिया जाएगा क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन आई टेक एज पॉजिटिव, प्लस व्हाट इज a, दैट इज माइनस g t. सो v is equal to u minus gt. हो गया पहले का आंसर. अगर u दिया है आपका और टाइम भी आपको दिया है, तो हो गया आंसर. तो अब when velocity will be 0,
व्हेन वेलोसिटी विल बी 0। तो ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है ना, ठीक। अगर मैं इसको 0 कर दूं, इट इज u माइनस जी टी, और यहां से मुझे मिला t, दैट इज इक्वल टू u बाई जी। हो गया काम, इट इज टाइम ऑफ राइज। अब मैंने इस v को क्या किया, 0 रख दिया, यानी कि बॉडी स्टॉप्स दिए ना। व्हाट इज h? चलो s लिखूंगा पहले फॉर्मल लिखने के लिए, u प्लस 1/2 a t स्क्वायर, ऐसे कुछ। तो व्हाट इज s इक्वल टू, s को h लिखो। चलो यहां पर वर्टिकल हाइट के लिए, इन द वर्टिकल मोशन वी से h, तो h इज इक्वल टू व्हाट इज u, दैट इज u whatever it may be, t in how much time it goes up, plus 1/2, it is minus g, it is t square. So it is h is equal to ut minus 1/2 g t square. ये आपका फॉर्मूला है in gravity, one dimensional motion under gravity, h ut minus 1/2 g t square, right? चलो मैं और एक चीज करता हूं, मैं बॉडी को रिलीज करता हूं। लेट मी रिलीज द बॉडी। 7th पॉइंट, हैव अ लुक। मैंने बॉडी यहां रिलीज किया। रिलीज करने का मतलब, you see, there is a technical words also here. When the body is just released means what? What do you mean by just released? The body is just released. You are not throwing the body like this. You are just released. Just released means initial velocity is 0. This means just released. ये भी याद भी रखो। When the body, you say body is just released, means initial velocity is 0. अच्छा, तो अब just released, तो मुझे निकालना है कि what is velocity after some time, how much height it falls, right? तो ये दो चीजें अक्सर इसमें चाहिए। पहली बात मैं ये v निकालता हूं, it is u plus 80, right? फॉर्मूला तो पहले लिखना चाहिए जब तक आप मतलब फेमिलियर हो जाएंगे। तो इज इक्वल टू u is 0, it is minus g and t, because g is again downwards, ay minus g, तो हो गया माइनस जी टी। माइनस का मतलब यहां है कि जो यहां वेलोसिटी है, when the body falls, तो वेलोसिटी का हमेशा डायरेक्शन डाउनवर्ड होता है, तो इसने दिखाया माइनस जी टी। ठीक, अब मुझे h बताइए, ये h बताइए मुझे, वही लिखूंगा ताकि आपको समझ आए। चलो यही ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, फॉर्मूला तो पहले लिखना पड़ेगा ताकि यू आर फेमिलियर हाउ टू यूज द फॉर्मूला एंड हाउ टू गेट द करेक्ट रिजल्ट फ्रॉम द फॉर्मूला। तो इट इज u इज 0 प्लस 1/2 माइनस जी टी स्क्वायर, दैट इज h इज इक्वल टू माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। यह माइनस इसलिए है कि इट इज ए फॉलिंग हाइट। अगर आपने यहाँ ऑरिजिन लिया, इनिशियल पोजीशन को यहाँ रेफरेंस फ्रेम का ऑरिजिन बनाया, इसका मतलब h जो है दैट इज बिलो द ऑरिजिन, दैट इज बिलो द रेफरेंस लाइन, अदरवाइज यू नो इट्स 1/2 जी टी स्क्वायर। तो लग गया था, अगर इस h को भी माइनस लिखोगे बिकॉज इट इज ए फॉलिंग हाइट, तो माइनस, दैट मीन्स h, मैग्नीट्यूड ऑफ h इज 1/2 जी टी स्क्वायर। और लगे हाथ आप t भी निकाल सकते, इन हाउ मच टाइम a body falls through height h, तो कितने टाइम में बॉडी फॉल हो जाएगा। t इज इक्वल टू 2h बाई g इसका रूट, और ये आपको याद ही होता है, व्हेन a body is just released it falls a height h and time is equal to root of 2h by g, लेकिन वो यहां से आता है। वेलोसिटी कितना है आफ्टर सम टाइम, ये है, और हाइट कितना फॉल हुआ, ये। एंड ऑल दीज थिंग्स आर डन इन वन डायमेंशनल मोशन, and you are using the basic rules. चलो अब कुछ और करते हैं, हैव अ लुक, कुछ और करते हैं। सपोज आपने, देखो मैं समझाता हूं, 8th पॉइंट, आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर वेलोसिटी u दिया, और जाते 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 यहां स्टॉप हो गया, कैन यू टेल मी
व्हाट वाज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बिफोर 1 सेकंड? 1 सेकंड पहले यहां वेलोसिटी क्या था? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट 1 सेकंड बिफोर इट स्टॉप्स? कैन यू गिव मी द आंसर डायरेक्टली? चलो पहले निकालता हूं मैं, फिर मैं आपको बताऊंगा मतलब हाउ कैन यू डायरेक्टली आंसर द क्वेश्चन. तो हाउ मच टाइम इट टेक्स फ्रॉम हियर टू द टॉप पोजीशन? टॉप पोजीशन तक कितना टाइम इसको लगेगा? अभी हमने निकाला टाइम ऑफ राइज, दैट इज ओके u by g, इतना टाइम इसको लगा. और ये दिस इज आल्सो नंबर ऑफ सेकंड्स, जितना टाइम लगा उतना नंबर ऑफ सेकंड्स. तो बताइए व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड. चलो डिस्टेंस कवर्ड बाद में बताते हैं. व्हाट्स द वेलोसिटी इन हाउ मच टाइम? What's the velocity cover? What is the velocity after this much of time? U by g, that is 0 because it has stopped. What is the velocity 1 second earlier? समझने की कोशिश कीजिए आप. The velocity after u by g seconds is 0. मगर what is the velocity after earlier by 1 second? That means u by g minus 1 or t minus 1 or n minus 1 seconds. तो वो आपको निकालना पड़ेगा. तो बताइए वेलोसिटी, दैट इज u दिस वन प्लस at, ये तो फॉर्मूला है, पहले मैं लिखता हूं फॉर्मूला. दैट इज u, व्हाट इज a? दैट इज माइनस g, जो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है. व्हाट इज टाइम? हाउ मच इज द टाइम? यस u by g, नो u by g minus 1, ऐसे कुछ. ठीक? Is that right? I want to find the velocity 1 second before it stops. यहां पर मुझे वेलोसिटी चाहिए. को 1 सेकंड मैंने लेस कर दिया. सो इट इज u, ये मल्टीप्लाई करने से माइनस u, माइनस टू माइनस प्लस g, ये खत्म हुआ. दैट इज g इज 10 मीटर्स पर सेकंड. ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं है, ये तो v निकाला हमने, इसलिए 10 मीटर पर सेकंड ये वाला, या 9.8 मीटर्स पर सेकंड. तो इसका मतलब 1 सेकंड पहले जो इसका वेलोसिटी होगा ऑब्जेक्ट का इन द वर्टिकल मोशन, 1 सेकंड पहले बिफोर इट स्टॉप्स, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल वेलोसिटी. ये वेलोसिटी कुछ भी हो, तब भी 1 सेकंड पहले इसका यही वेलोसिटी है g, दैट मींस 10 मीटर पर सेकंड. डोंट राइट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट इज g इनटू टाइम. वो टाइम 1 सेकंड है, इसलिए ये आया 10 मीटर पर सेकंड इनटू 1 सेकंड. 1 सेकंड कैंसिल होता है, 10 मीटर पर सेकंड. तो व्हाट यू हैव लर्नड? यू हैव लर्न दैट ये वेलोसिटी कुछ भी हो, 1 सेकंड पहले वेलोसिटी हमेशा 10 मीटर पर सेकंड होना चाहिए. और क्यों नहीं होगा? क्योंकि व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 1 सेकंड में कितना वेलोसिटी कम हो जाता है वर्टिकल मोशन में? 1 सेकंड में वेलोसिटी कम हो जाता है 10 मीटर पर सेकंड. तो अगर इसका यहां पर 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, तभी तो 1 सेकंड में 0 हो जाएगा. तो 1 सेकंड से पहले हमेशा 10 मीटर पर सेकंड ही होगा, क्योंकि 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी कम हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटी. तो इसका मतलब 1 सेकंड पहले हर एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी वही होगा जो होना चाहिए 10 मीटर पर सेकंड, कुछ भी वेलोसिटी इनिशियल हो. इसीलिए इनिशियल वेलोसिटी यहां कैंसिल हो गया, क्योंकि फाइनल एक्सप्रेशन में इनिशियल वेलोसिटी रहा ही नहीं. सो इट इज समथिंग टू लर्न. अब मुझे बताइए 1 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा ऊपर की ओर? ये बताइए आप, शाबाश. 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा ऊपर के ओर लास्ट 1 सेकंड में? ठीक? तो 1 सेकंड में पहले कितना ये गिरेगा नीचे? चलो ये मैं अलग से दिखाता हूं. हैव अ लुक. ये कॉपी कीजिए आप. ये देखिए, आपने रिलीज ये देखा, ये ऊपर की ओर, तो ये यहां पर स्टॉप हो गया. तो 1 सेकंड में कितना ऊपर जाएगा लास्ट 1 सेकंड में? अच्छा, लास्ट 1 सेकंड में ऊपर जाने का ये है कि अगर आपने इसको रिलीज किया तो 1 सेकंड में ये कितना नीचे आएगा? h इज इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर. अभी हमने निकाला व्हेन द बॉडी इज रिलीज 1 सेकंड में कितना नीचे आया? सो 1/2 g, सो 5 मीटर्स.
रिलीज करोगे 1 सेकंड में 5 मीटर नीचे आएगा, ऊपर जाने में 1 सेकंड पहले से लास्ट में यही 5 मीटर, क्योंकि दिस डिस्टेंस को दिस डिस्टेंस, जितना इसको 1 सेकंड में नीचे आएगा उतना ही 1 सेकंड में ही ऊपर गया। यानी कि हाँ, अगर लास्ट 30 सेकंड्स की बात है, लास्ट 30 सेकंड्स, इन 30 सेकंड व्हेन इट स्टॉप्स, इन 30 सेकंड्स में कितना ऊपर जाएगा? अगर देखो तो इन 30 सेकंड्स में कितना नीचे जाएगा? 1/2 GT स्क्वायर, राइट? नीचे जाने का डिस्टेंस तो आपको पता है, वो आपने निकाला, लेकिन what will be distance covered in the last these 30 seconds? Same as this, h is equal to 1/2 GT स्क्वायर। वजह यह है कि ये इनिशियल जीरो है ना, यहां से ओके, ये इनिशियल जीरो है, टाइम t में यहां वेलोसिटी कुछ होगा लेकिन डिस्टेंस कवर ये होगा। यहां पर इनिशियल वेलोसिटी कुछ है लेकिन फाइनल जीरो है, यहां फाइनल जीरो हो गया, इनिशियल से फाइनल जीरो, यहां जीरो से समथिंग फाइनल, तो ये सिमेट्रिकल केस बन जाता है। यानी कि टी सेकंड में जितना ये नीचे गिरेगा उतना ही लास्ट टी सेकंड में ये ऊपर भी जाएगा। ये याद रखने वाली बात है, इस पर क्वेश्चंस आते रहते हैं। लास्ट टी सेकंड जो है, तो रिलीज करने से जितने पहले टी सेकंड में फॉल हो जाएगा उतने ही नीचे जाकर के लास्ट टी सेकंड्स में ऊपर राइज करेगा। So this is symmetrical case. So this was one-dimensional motion, and okay, I will give you one more lecture on this one-dimensional motion. I try to finish it off in one shot, but obviously it must take 2 lectures. In the next lecture, I will give only its applications. Follow the lectures and try to subscribe my channel YouTube at the rate of Tantray Sir Physics classes. Thank you.